اے ولیوں کے ولی مولا تاغی، صاحب جود و کرم ہاشمی، آپ ہیں نور مجسم یا جواد، آپ سے ہم کو ملی ہے زندگی۔ آپ ہیں یا زکریا کا حشم، آپ کے کاندھوں پہ ہے حق کا علم، بچپنے میں علم یوں جاری ہوا، توڑ ڈالا جس میں باطل کا بھرم، کم سنین مالک خلق نبی، وارث حلم حسن روح علی، مثل مساوی صاحب نے سب مٹا ڈالی زحل کی تیرگی، آپ کی ہے کنیت ابن رضا، اور لقب باب المراد ہے آپ کا، خلق کی حاجت روائی کے لیے ہے کھلا در آپ کا صبح و مساء۔ سنو یونس، کیا تم ہمارے شام بن حکم کے شاگردوں میں سے ہو؟ کیا تم ان سے کوئی حدیث نقل کر سکتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ تم سے کچھ اچھی باتیں سنیں۔ میں حدیث اور فقہ والوں کے درمیان میں پھنس کر رہ گیا ہوں۔ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ حشام بن حکم نے کیا کہا، عقلی مباحث کے بارے میں مجھ سے حدیث پوچھتے ہو۔ حدیث بیان کرو ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، میرے استاد نے سما سے روایت نقل کی ہے، اور اس نے رئیس مکتب تشیع حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا۔ پروردگار کا درود و سلام ہو ان پر اور ان کے اہل بیت۔ انہوں نے فرمایا، غیر مادی چیزوں میں سب سے پہلے جسے خدا نے خلق کیا وہ عقل تھی۔ جب اسے خلق کیا تو اسے حکم دیا کہ پیچھے جاؤ، وہ پیچھے چل پڑی۔ پھر اسے حکم دیا کہ آگے آؤ، اور وہ آگے آ گئی۔ عقل کے لیے کچھ نشانیاں ہیں جس کی تعداد 75 ہے، اور جہل کی بھی 75 نشانیاں موجود ہیں۔ کیا ہمیں اس بارے میں اور بتاؤ گے یونس؟ ابھی تم ہی لوگ تھے نا جو کہہ رہے تھے سننے کا حوصلہ نہیں ہے، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب بتا بھی دو، ہم اپنے مولا کے حکم کے فرما بردار ہیں، اور ہر وہ معارف سننے کے لیے تیار ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے بیان کی ہے، جس کا مصدر اور مبدا پروردگار کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی جان لیجئے کہ عقل کے مقابلے میں جہل ہے، اور ہر چیز اپنی ضد اور اپنے مخالف سے پہچانی جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے دونوں بیان کی ہیں۔ خدا تم پر رحم کرے، ہم سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے، پھر یونس بتائے گا ہمیں اس بارے میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایمان عقل سے ہے اور کفر جہل سے۔ الہی حقیقتوں کی تصدیق عقل کرتی ہے، اور ان حقیقتوں کا انکار جہالت۔ امید رکھنا عقل کی طاقتوں سے ہے، اور نا امید اور مایوس ہونا جہل کی طاقتوں سے۔ عدالت عقل کی قوتوں میں سے ہے، اور ظلم و ستم کرنا جہل کی قوتوں میں سے ہے۔ پروردگار کی تقدیر پر راضی رہنا اور اس کے حکم پہ عمل کرنا عقل ہے، اور غضب و غصہ جہل کی طاقتوں سے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا عقل کی طاقتوں اور نشانیوں میں سے ہے، اور نعمتوں کا کفران کرنا جہل کی نشانیوں میں سے۔ نیک کام کرنے کا جذبہ عقل سے ہے، اور کاہلی اور بے فکری جہل سے ہے۔ خدا پر توکل کرنا عقل سے ہے، اور لالچی ہونا جہل سے ہے۔
مہربان ہونا عقل سے ہے اور سنگ دل ہونا جہل کی نشانیوں میں سے ہے۔ حدیث کا باقی حصہ بات کے لیے رہنے دیں۔ اے ابن حجاج، ہماری منزل کے بارے میں بتاؤ۔ عراق کے راستے سے سیدھے پیغمبر کے شہر مدینہ جائیں یا پہلے مکہ؟ کیا کرنا چاہیے؟ مدینہ سے واپسی میں چلیں کیا؟ بہتر یہی ہے کہ پہلے مکہ جائیں اور حج ادا کریں، اس کے بعد مدینہ جائیں۔ خانہ خدا کے باقی حاجی بھی بالکل اسی طرح سے عبادت کرتے ہیں، اور پھر ایسا کرنے سے حکومتی جاسوس بھی ہم سے دور رہیں گے اور مخبروں سے بھی بچ جائیں گے ہم۔ اگر ان کی نظر ہم پر نہ بھی ہو تو مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی نظر امام محمد ابن علی کے گھر پر ضرور ہوگی، اور جب تک وہ ہمارے مولا امام رضا علیہ السلام کے جانشین کو پہچان نہ لیں انہیں سکون نہیں آئے گا۔ پروردگار کا سلام ہو ان پر۔ تو طے ہوا، ہم پہلے مکہ کی طرف ہی جائیں گے۔ اس ظالم کی حکومت کے کرندے مدینہ میں بھی مصروف ہوں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مولا۔ ہمارے کچھ مہمان آنے والے ہیں جو ہمارے جد رسول خدا کی قبر کی زیارت کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بڑی خواہش لے کر آ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہاں پر آ کر کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں۔ کسی بھی خادم کے ساتھ جو تمہیں پسند ہو۔ ہمارے جد عبداللہ جعفر ابن محمد صادق کے گھر جاؤ۔ جو آپ حکم دیں گے وہی ہوگا مولا۔ موفق، گھر خالی ہے، جاؤ ان خستہ حال مسافروں کے لیے بستر، کھانا اور میٹھے پانی کا انتظام کرو تاکہ وہ کچھ آرام کر سکے۔ آپ کے حکم کی اطاعت کروں گا۔ انصار میں سے ہمارے پڑوسیوں کی مدد کے لیے کچھ پیسے لیتے جاؤ، وہ ضرورت مند ہیں، ان سے نہ کہنا کہ یہ پیسے کن کی جانب سے آئے ہیں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ خدا تم کو کامیاب کرے اے موفق۔ مہمانوں کے بارے میں خلیفہ کے سپاہیوں کی اذیت سے خوف زدہ ہوں۔ انہیں ہمارے مہمانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، خدا کی حفظ و امان میں جاؤ۔ جو آپ کا حکم مولا۔ مامون عراق کے راستے میں اپنی طاقت کا عباسیوں کے سامنے مظاہرہ کرنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ وہ ایک مقتدر خلیفہ ہے، اس نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ ولایت عہدی کے واقعے کے بعد کوئی اور منصبے کا استعمال کرے، اور وہ علی علیہ السلام کا دوسروں سے افضل ہونا تھا۔ اے بنی عباس، مامون دھوکہ کھا چکا ہے۔ اس کا شیعہ ہونا اس بات کا باعث ہے کہ خلافت تم سے چھین سکے اور علی کی اولاد کے حوالے کر دے۔ مگر یہ سمجھ لیجئے کہ بہت تیزی سے بغداد کی طرف آ رہا ہے، اور کچھ سپاہی تو ایسے ہیں جو اس کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں، تو ہمیں کچھ بنیادی اور مؤثر تدبیریں سوچنا ہوں گی۔ شہر کے نگہبانوں کو مامون سے مقابلے کے لیے بھیجنے سے شہر اوباشوں اور خودسروں کے لیے خالی ہو گیا ہے، اور بغداد فتنہ اور فساد کی طرف جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر عوام بھڑک گئی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ مامون خراسانیوں کو اپنے ساتھ کرنے میں بخوبی کامیاب ہو چکا ہے۔ ہمیں عربی تعصب کے ذریعے لوگوں کو برگلانا ہوگا۔ مثلا نصر ابن شبس جو شام میں مزر قبائل کا بزرگ ہے، مامون کی بیعت کو راضی نہیں ہوگا۔ اس کے پاس 1,00,000 سپاہی ہیں، تو طاہر کا اس سے مقابلہ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ امیر کی اس بات پر غور کرتے ہوئے ہمیں ضرور صبر کرنا ہوگا، تاکہ اس کے نئے حربوں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے منصوبوں کے مطابق آپس میں مشورہ کر کے اس کے حربوں کی تاثیر کو روک سکیں۔ اے مسلمانوں، غور سے سنو، آپ کی جان و مال کی حفاظت اب آپ کے بس میں ہے۔ کسی ایک کو نہیں روکنا ہے، بلکہ مقابلہ بہت سخت ہے۔ طاہر بن حسین کے بغداد چھوڑنے کے بعد کوئی ایک شخص بھی نہیں جس نے سکون دیکھا۔ مجھے اب آپ کی مدد چاہیے۔ آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مدد کے لیے ساتھ مانگ رہا ہوں۔ میں آپ کو خدا کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اسی طرح جیسے خدا نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کا ساتھ نہ دیجیے، ہمیں امنیت چاہیے، امنیت۔
वाह हो तुम पर दरवेश, तुम्हें हुकूमत की लालच हो गई है। की कसम नहीं, सिर्फ अम्र बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कर रहे हैं। जिस दिन हम बगदाद की हिफाजत कर रहे थे और इसके लिए खून बहा रहे थे, तुम सब कहाँ थे? हमला करो। मैंने सिपाहियों को मदाइन और गांव की तरफ भेज दिया है। वो मेरे लिए वहां मालियात जमा कर रहे हैं। तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि वो मामून आपको किसी भी हाल में खुश रहने नहीं देगा। मैं बैत कर रहा था। बैत? किसकी बैत की? परेशान ना हुई है, नहीं की मैंने बैत किसी की। लोग मुस्तरिब हैं, इनकी नजरों में इख्तिलाफ है। बस करो, हमसे मजाक मत करो अबू ईसा। मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूं। अफसोस, वादा खिलाफी की सजा मौत है सालेह। अम्मू जान, बताया तो है कि नहीं हुआ। लोगों की नजरों में इख्तिलाफ है। कुछ लोगों ने मुखारिक के साथ बैत की है और कुछ लोग जलजल की बैत पर अड़े हुए हैं। मगर खालिद उल अर्ज जो इन मर्दों का सरदार है, वो राजी नहीं होगा। आपके अलावा किसी और पे राजी नहीं होगा। अगर अभी तक इब्राहिम खिलाफत का जिम्मेदार था, इसके बाद मुखारिक को खिलाफत मिलेगी। मुखारिक के बाद खिलाफत जलजल को मिल जाएगी और इसके बाद एक मुर्तिद, हाँ एक मुर्तिद खलीफा हो जाएगा। जब कोई मुर्तिद नहीं है जो खलीफा बने, तब ऐसा होगा कि फासिक को फासिक से खिलाफत मिलेगी। मेरे ख्याल से ये वही मलून देबल बिन अली खुजाई है। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो मैं उसका सर उड़ा दूंगा। कहा ना मजाक नहीं कर रहा। किसी को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? खुद जाकर हकीकत जान ले। सुलेमान, क्या तुमने मामून का खत पढ़ा है अब्बासियों के लिए? उसके बारे में सुना है, तुम्हें अवाम से छुपा रखा है। मेरी बात गौर से सुनो। हमेशा तुम लोग अपनी जिंदगी में मशगूल रहे हो। अक्लमंदी और सूझबूझ से बहुत दूर हो तुम लोग। हर फैसला करने में हमेशा जल्दबाजी और बेवकूफी की है। सुनिए कि मामून अली बिन अबी तालिब के बारे में क्या कह रहा है। अबू तालिब ने रसूल की सरपरस्ती का जिम्मा लिया और उनको पाला। हमेशा उनकी हिफाजत करते थे और उनके दुश्मनों के लिए एक रुकावट थी। जब अबू तालिब वफात पा गए और जब ये बात उन लोगों को पता चली तो वो सब रसूल के खिलाफ जमा हो गए ताकि उन्हें कत्ल कर सके। महाजरीन में अली अलैहिस्सलाम की तरह कोई भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा नहीं हुआ। अली ने रसूल का साथ दिया और अपनी जान से खेलकर रसूल अल्लाह से खतरों को दूर किया और रसूल अल्लाह के बिस्तर पर सोए। यहाँ तक के कहने लगे कि अली को हदीस से गदीर खम की बुनियाद पर विलायत मिली है। तो रसूल ने फरमाया, तुम मेरे लिए वैसे हो जैसे हारून मूसा के लिए, बस मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तुम ताइफ के दिनों में मेरे साथ थे। वो मखलूकात में खुदा से सबसे ज्यादा करीब था, कोई उसका मुकाबिल नहीं था। यूं समझो कि उस जैसा कोई नहीं। वो दरवाजे का मालिक था। मस्जिद की जानिब सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन सिर्फ इसका दरवाजा खुला रहा। वो खैबर के दिन परचम लहराने वाला है और ये वही है जिसने जंग के दिन उमर बिन अब्दूद को शिकस्त दी। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के दरमियान अक़द अख़ूत पढ़ा था, वो रसूल खुदा के भाई बने थे। और अली की फजीलतें बयान कर रहे हैं और सहाबा की शान में कमी नहीं कर रहे। अब वो बात भी सुनिए हाजरीन जो बर्दाश्त से बाहर है। तुम में से ऐसा कोई नहीं जो अपनी जिंदगी में मशगूल ना हो, जो हर काम में बेवकूफ़ी से काम लेता हो। और तो और ये भी कहा, तुम लोगों के हर फैसले में जल्दबाजी है। और ये भी कहा कि तुम कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। मुझे ये बताओ कि आखिर कैसे जो असेरी के हाल में रात गुजारता है और सुबह होते ही अपने गुनाहों पर खुश हो, ऐसे शख्स का कोई ठिकाना नहीं जो 1000 भेजे हुए पैगंबरों और फरिश्तों का कत्ल करने के बाद अपने ख्वाहिशात तक पहुंचे।
वो जिन गुनाहों और लग़वियात में है उससे बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और आपके सर पर लोहे बरसाए जाएंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाकिमों पर तवक्कुल हमारे लिए काफी है। इसे हिफ्ज कर लिया है क्या अबू ईसा? जी हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो अपनी इताअत के लिए हमें आवाज दे रहा है, वरना वो हमारा कत्ल कर देगा। हम भी उसके साथ जंग करेंगे ताकि हमसे कोई एक दूसरे पे गालिब आए। किस चीज से? किस चीज से? वो भी खाली हाथ, मज़ाहिया तौर पे। अपनी जबान पर काबू रखो सोले। ये आपने क्या कर दिया? ये हमारे हाकिम का हुक्म है। मैं आपका वली नहीं हूं क्या? नहीं इब्राहिम, तुम नहीं हो। मोमिनीन का खलीफा अब्दुल्ला मामून है। तो फिर उस बैत का क्या जो आपने मेरी की थी? क्या वो बैत आप तोड़ रहे हैं? हमारी बैत जरूरत की बुनियाद पर थी, जो अब बातिल हो चुकी है। बातिल है? मगर ऐसा क्यों है? दरअसल मामून अपने भाई की खयानत के बाद खलीफा बन गया था। अमीन मारा गया और लोगों ने उससे बैत कर ली। तो इसका मतलब हुआ अम्मूजान आप मेरी बैत से कतरा रहे हैं और मामून की तरफ रागिब हो रहे हैं, और उसके हुक्म से अली की औलाद की मोहब्बत में आप हरा लिबास पहनेंगे। ए इब्राहिम, क्या तुमने उसका खत नहीं पढ़ा? अब जब मामून खलीफा हो गया है, अगर हुकूमत उसके हवाले ना की हमने, तो हमें बगैर किसी झिझक के कत्ल करके हमारी तौहीन करेगा। और मेरा क्या होगा ये नहीं सोचा आपने? जैसे हुक्म दिया है, हरा लिबास पहनो और अपने आप को हुकूमत से दूर कर लो, और फिर उसे खलीफा मान लो। हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। हरगिज मैं ऐसा नहीं करूंगा। मर जाना पसंद करूंगा। मैं कभी ऐसे हुक्म पर अमल नहीं करूंगा जो अली की औलाद की निशानी हो। जब तक मेरी सांसें बाकी हैं, मैं अपना काला लिबास अपने बदन से नहीं उतारूंगा। तो फिर उनसे जंग करोगे? हरगिज नहीं। मेरे पास एक भी सिपाही नहीं बचा है। अम्मूजान, अब आप जाएं। इस वक्त मिट्टी के लहद ही मेरे लिए बेहतर है। एक दफा अच्छी तरह सोच लो तुम। बैत से रुख फेरना और खलीफा और खिलाफत को नाहक गस्ब कर देना तुम्हारे खून को तबाह कर देगा। हाँ। खुदा तुम्हारी निगहबानी और हिफाजत करे। बस इसी बात पर मुझे उम्मीद है। अब इब्राहिम, तुम्हें यहां से भागना होगा। मौत से भागने में कोई बेवकूफी नहीं है। बहुत ही अड़ियल घोड़े पर सवार हो इब्राहिम। ये मुझे बगदाद के हर कोने में तलाश करेंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसके जासूस बगदाद में भरे हैं और तुम मेरे पास आओगे। और कोई जगह समझ में नहीं आई। मैं मेहदी के महल में बड़ा हुआ हूं। हमेशा गुलाम और कनीज मेरी खिदमत के लिए हाजिर रहे। हर चीज हासिल की मैंने, मगर अब हर जगह से हार चुका हूं। बस कोई महफूज जगह चाहिए जहां छुप सकूं मैं, और वहां 2 वक्त की रोटी खा सकूं मैं। समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अपने साथ ऐसा क्यों किया इब्राहिम? मत कहें, आपकी बातें मुझे मायूस कर रही हैं। इब्राहिम, मैंने उसके खिलाफ ऐलान जंग किया है और उसे हटाने के लिए उसके भाई को दफन कर दिया। मैं वाकिफ नहीं इससे। मुश्किल है वो मुझे छोड़ दे, मगर ये कि उसे मेरी उम्र का ख्याल आ जाए। मैं उम्र में उसके बाप के बराबर हूँ। वो हिल्म और गलतियों की मुआफी में मशहूर है। मगर जो मैंने किया, मेरे ख्याल से उसकी कोई माफी नहीं है। मैं एक ऐसी कश्ती पर सवार हूं जो कभी किनारे नहीं आएगी। वो वाली और हाकिम है, चाहे तो सजा दे, चाहे तो माफी। क्या बात है इस हुकूमत की, जिसमें मुझे अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मिला था, जिसमें इब्ने सलामा जैसे बद्दू लोग अवाम में ज्यादा असर रखते थे। यहां तक कि मैं उससे मदद लेता था, उसे मुझसे बरतरी हासिल थी। मनसब के हाथ से निकल जाने के बाद अफसोस से कोई फायदा नहीं होता।
اب کیا؟ تم چاہو تو رک سکتے ہو، چاہو تو جا سکتے ہو۔ تمہارے بھتیجے کے جاسوس ہر جگہ ہیں۔ خدا کے حوالے کرتا ہوں سب۔ اتنی خدمتوں کے باوجود بھاگنا پڑے گا، مرنے تک بدبختی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ نہیں پتا تھا کہ بنی عباس کے مردوں کی تعداد اتنی ہوگی۔ خلیفہ ان کو کیسے پہچان پاتا؟ امیر المومنین اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھولتے نہیں۔ اس کے گھر والوں پر کتنی تلواریں چلائی جائیں گی وہ یہ بات اچھی طرح خود بھی جانتا ہے۔ صالح، مذاق کرنا بند کرو۔ آخر کیوں ابو اسحاق؟ کیا میرا نام محمد نہیں ہے؟ اور کیا امین کا نام بھی محمد نہیں تھا؟ اور بنی عباس کی کتاب جو ان کے چچا زاد بھائیوں سے ملی ہے اس میں نہیں آیا کہ محمد بن ہارون کا سر اس کے تن سے جدا ہو جائے گا؟ اور کیا یہ واقعہ نہیں ہوا؟ صالح، میں ماردہ ترکی ماں کا بیٹا ہوں، قریشی ہاشمی ماں زبیدہ کا بیٹا نہیں ہوں میں۔ اور اسی وجہ سے ترک تم سے زیادہ قریب ہیں۔ وائے ہو ہم عباسیوں پر، ہم خود میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ عرب بھی ہم سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ وہ ایک فارسی ماں کا بیٹا ہے تو ہم اس کے فوج کے سردار اور وزیر بنیں گے، اور جب تک حکومت دوسروں تک پہنچے گی تب تک ترک درمیان میں آ جائیں گے اور بغداد ترکوں سے بھر جائے گا۔ وحشی طبیعت اور لوگوں سے دشمنی کی وجہ سے وہ لوگوں سے سختی سے پیش آئیں گے، یہاں تک کہ اس واقعے کا دن آ جائے گا۔ اتنے اہم مسئلے میں مذاق کرنا ٹھیک ہوگا کیا؟ اہم مسئلہ؟ اس کی اہمیت کہاں ہے ابو اسحاق؟ کیا ابن مہدی فوجیوں کو معاف کرنے کے بجائے نغمہ سرائی نہیں کرتا تھا؟ اور تمہارے بھتیجے فضل ابن سہل کو ایک کنیز کی وجہ سے قتل کر دیا۔ نہیں پتا تھا کہ بنی عباس کے مردوں کی تعداد اتنی ہوگی۔ ہاں، تشویش میں نہ پڑیے، میں کہہ رہا ہوں کہ تلوار کی 20 ضربوں سے تبھی موت مرا ہے۔ البتہ میں نہیں جانتا کہ کون مارنے والا تھا، حتیٰ کہ قاتل خود خلیفہ مسلمین نگہبان ہو۔ تم جب خلیفہ بن جاؤ گے تو کیا معافی کے بدلے لوگوں سے مذاق کیا کرو گے کیا؟ تمہارے چچا ابراہیم ہمیشہ نقل کرتے تھے کہ بنی عباس میں آواز کی خوبصورتی اور لہن میں تم سے زیادہ کوئی نر نہیں۔ وائے ہو تم پہ ابو اسحاق، پتہ نہیں کیسے خلافت کے خزانوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اور جو آپ نے مامون کی امام رضا علیہ السلام کی بیعت کی تدبیر کے بارے میں فرمایا، کہنا پڑے گا کہ مامون نے بہت سوچنے کے بعد امام رضا علیہ السلام کی بیعت کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زمین پر کوئی بھی ان سے زیادہ نہ کوئی فاضل ہے اور نہ کوئی ان جیسا پاک دامن تقوی والا اور زہد اختیار کرنے والا نہیں ہے۔ وہ کسی کو خود سے دور نہیں کرتے، اور ان کے علاوہ کوئی بھی شیعوں اور غیر شیعوں کے درمیان محبوب نہیں ہے، اور خدا کے حکم کی اطاعت کرنے میں کوئی بھی ان سے زیادہ سختی نہیں برتتا۔ ان کے ساتھ میری بیعت خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھی، اور کسی بھی اعتراض کرنے والے کا حق نہیں سمجھتا کہ خدا کی اطاعت میں مجھ پر اعتراض کرے۔ میری بیعت محبت اور دوستی کی وجہ سے نہیں، میرا بیٹا عباس اور دوسرے بیٹے میرے لیے زیادہ عزیز ہیں، مگر میں نے کچھ چاہا اور خدا نے کچھ اور، مگر میری چاہت خدا کے ارادے سے آگے نہیں، اور کوئی بھی ارادہ خدا کے ارادے پر حاوی نہیں ہے۔ یہ اس تحریر کا خلاصہ ہے۔ اے عبداللہ، یہ سب دکھاوا ہے۔ اس نے میرے بھائی محمد بن جعفر کا قتل کر دیا اور اس کے جنازے میں کہا کہ یہ رشتہ داری بہت پہلے ہی منقطع کر چکے ہیں، 200 سال قبل۔ یہ وہ فتنہ ہے جسے اس نے اختیار کیا ہے، اور ہر فتنے کے آغاز میں ہوائیں نفسانی ہیں جس کی پیروی ہوتی ہے، اور خدا کے حکم کے بدولت اسے بنا دیا جاتا ہے۔ فتنے سے لوگوں کے دل خدا کے دین کے علاوہ کسی اور کے دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، کیونکہ حق اور باطل ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں، اور سبب بنتا ہے کہ شیطان اپنے چاہنے والوں کے ذریعے پوجا جائے۔ آپ جو بھی حکم دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے میرا مولا۔ اس فتنہ انگیز سے دھوکہ نہیں کھانے والے ہیں ہم، کیونکہ آپ خدا کی ہدایت کا نور ہیں
अगर ये सोचते हो कि किसी नतीजे और फायदे की तलाश में हो तुम लोग, तो कहना पड़ेगा कि मैं आप और आने वाली नस्ल, आपके बच्चे और आपके रिश्तेदारों के लिए फिक्रमंद हूँ। तुम लोग लहू लआब में मशगूल हो। ठीक है, ऐसे शख्स की तरह जो शाम सवारी में और सुबह खुमारी में गुजार देता है। गुनाहों पर फक्र करते हो और उससे खुश होते हो। बरबत की धुन आपका खुदा है और तुम्हारी चाल चलन औरतों की तरह है। नमाज को जाया कर दिया और शहवतों के पीछे चले गए और लज्जतों के चक्कर में पड़ गए। गुमराही की सजा मिलेगी तुम लोगों को। खुदा की कसम, कभी कभी तुम लोगों के बारे में सोचता हूँ और किसी उम्मत को नहीं जानता जो किसी एक बुरी खसलत की वजह से अजाब की हकदार बन जाए, जबकि अजाब उन पर नाजिल हुआ है और वो खसलत तुम्हारे अंदर मर गई हो। मगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी खसलतें हैं जिन्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि शैतान भी वहां तक नहीं पहुंचा होगा और ना पहुंचेगा। ए अय्यारों और होशियारों, इसने कई बार आपको अपने घर वालों से भी ज्यादा करीबी रखा, तो फिर मैं उसकी बैत क्यों ना करूं? हत्ता अगर अय्यारों का सरदार भी बनना चाहेगा, उसके हक में पीछे हट जाऊंगा। वो बुलंद मर्तबे और इज्जत वाला है और ये आयत उसी के लिए नाजिल फरमाई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अपने खाने को जबकि खुद ज़रूरत रखते हैं और चाहते हैं और मिस्कीन, यतीम और असीर को दे देते हैं। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वो दुनिया और अहले जन्नत की सरदार खातून हमारे नबी की बेटी जनाब फातिमा के शौहर हैं। वो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के दामाद हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं और रसूल करीम ने उनको पाला है। वो हज़रत अबू तालिब के बेटे, रसूल के साथ जिहाद में मददगार थे। वो जान है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबाहले के मौके पर। वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिनकी राय के बगैर हज़रत उमर और अबू बकर कोई फैसला नहीं करते थे। वो जिस काम को करने का कहते वो कर दिया जाता था और जिस काम से मना करते उसे नहीं किया जाता। मुसलमानों के गज़ब से बचने के लिए मामून इन लोगों को रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कह देता? इस मामले में वो ऐसा अक़ीदा रखता है जो छुपाता नहीं। आगे बताओ उम्मे जाफर, और बताओ हमें। ये वो हैं जो बनी हाशिम से शोरा में दाखिल हुए। खुदा की कसम, अगर पैगंबर के असहाब इसे खिलाफत से दूर कर सकते जैसे उन्होंने अब्बास रिजवानुल्लाह को दूर किया था, अगर उन्हें ऐसा ही कोई रास्ता मिल जाता तो उन्हें खिलाफत से दूर कर देते। अभी आगे और सुनो। अब्बास पर उसे मुकद्दम करने के लिए खुदा ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाजियों की प्यास बुझाने वाला और मस्जिदुल हराम को आबाद करने वाले को वैसे ही जानते हो जैसे खुदा और क़यामत के दिन पर ईमान लाए हो और जिहाद करते हो? खुदा जालिमों की हिदायत नहीं करता। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क्या वो उसे अब्बास पे मुकद्दम रखता है? खुदा ने उसे मुकद्दम किया है। सूरह तौबा की आयत में जिसे मैंने पढ़ा, क्या फरमा रही है सुन लो। खुदा की कसम, अगर अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल और मनाक़िब और आयतें जो इनके बारे में आई हैं, अगर तुम में से किसी के बारे में ये मनाक़िब और आयतें आती तो शायद वो शख्स सभी असहाब में खिलाफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीनन मुकद्दम करार पाया जाता। वल्लाह, बहुत हैरान हूं मैं ज़ुबैदा। लोग आखिर कैसे ये बात कह देते हैं कि उसने अली बिन मूसा रज़ा का कत्ल किया है और उससे पहले अपने भाई मोहम्मद अमीन का भी कत्ल किया है। जब भी मराजिल को याद करता है उसकी तौहीन करता है, और जब भी रशीद को याद करता है उसे गालियां देता है, और जब खुद के बारे में बात करता है तो खुद को लाखों में एक समझता है, और जब अपने घर वालों पे निगाह डालता है तो देखता है कि वो इब्राहिम इब्ने शकीला को उस पर तरजीह देते हैं, हालांकि वो लोग इसकी सब जरूरतें पूरी करते हैं। ये खत एक अजीम बादशाह, अक्ल और खिरत के मालिक, बेहतरीन खतीब और बेनज़ीर आलिम, खानदान के लिए इफ्तिखार, हिल्म और बख्शिश का पैकर खलीफा मुस्लिमीन मामून के नाम उम्मे जाफर की तरफ से। उम्मे जाफर, ये किस तरह का कलाम है? ये मामून के लिए मेरी तारीफें हैं और वो इसके लायक भी है।
इतना सब कुछ होने के बाद भी? दो बादशाहों ने एक सरजमीन पर जंग की। एक की माँ उसके गम में अज़ादार हो गई और दूसरा बादशाह बच गया। हुकूमत उसकी मुट्ठी में है और उसका कोई मुकाबला करने वाला भी नहीं। वो एक यतीम बादशाह है और उसकी माँ भी नहीं है, तो मैं उसकी माँ बन जाऊंगी। मैं इसमें अपना फायदा देख रही हूँ। अगर तुम मर्द होती तो बनी अब्बास का कोई मर्द तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मामून को जैसे शैतान ने खुद अपने हाथ से बनाया हो। तमाम शैतानी खसलतों जैसे धोखाधड़ी और हसद, यही सब उसके दिल की सख्ती के असबाब थे। उसमें इंसानियत बिल्कुल नहीं थी। उसको बगदाद पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। बगैर किसी शोर शराबे के बगदाद में पहुंचने के लिए रास्ते भर में अपने इर्द गिर्द की बड़ी शख्सियतों का कत्ल करते हुए सबको अपनी हैबत दिखा चुका था। दो तरफ से अमल करता था। मुहाफिजों के दिल में जहर घोलता और सबके खिलाफ करता, और दूसरी तरफ तमाम शियों के साथ दो चेहरों के साथ पेश आता और उनको वर्ग लाता। एक तरफ से रहे में जहां उसके बाप की विलादत हुई थी, मालियात को माफ कर देता था और कुम वालों पर सख्तियां करता था। ये खत मैं तुम्हें लिख रही हूँ, ए मेरे अमज़ाद, जबकि मेरे रुखसार पर और आंखें आंसुओं से नम हैं। मैं उसके गम में अज़ादार हूँ जो तुमसे भी रिश्ते में करीब था। मेरा जिगर पारा पारा हो गया और मेरा सब्र कलील हो गया। ताहिर बिन हुसैन आया और खुदा उसको पाक ना रखे, क्योंकि ताहिर अपने काम में तहारत नहीं रखता। मेरे खुले चेहरे और बरहना बालों के साथ मुझे मेरी इमारत से बाहर निकाला। मेरे साजो सामान को हड़प लिया और मेरे घरों को वीरान कर दिया। जो मुसीबत मुझ पे आई है, हारून के लिए भी बहुत मुश्किल है कि ये एक आंख वाला नाक़िसुल खल्क़ इस तरीके से मुझसे बर्ताव कर रहा था। खुदाया, अगर तूने मेरा मुक़द्दर ऐसा ही लिखा था तो मैं खुदाए क़ादिर मुतलक़ की तक़दीर पर सब्र करती। मुझे इत्मीनान है कि अब्बासियान और दीगर हजरात को भेजे गए मेरे खुतूत मौसर होंगे और बगदाद में दाखिल हो जाएंगे। जब तक तदबीर और कलम से काम चल रहा है तो तलवार की क्या जरूरत? जिसने इब्ने सहल को कत्ल किया हमारे लिए मुफीद काम किया। और अबुल हसन का वक्त से पहले हट जाना भी। तुम क्या सोच रहे हो कि अलवी मेरा यकीन कर लेंगे अपने अक्सा? अगर अबुल हसन जैसा उनके दरमियान हो तो कभी यकीन नहीं कर सकते। उस जैसा कोई नहीं है। गुफ्तगू में तुम्हारी माँ से ज्यादा माहिर नहीं देखा इब्ने साहब। ऐसा क्या उससे सुन लिया खलीफा मुस्लिम? गया था उसके बेटे फजल की मौत की खबर देने तो रो रही थी। मैंने उससे कहा तुम्हारा बेटा अल्लाह की रहमत से करीब हो गया, आज से मैं तुम्हारा बेटा हूं। तो उसका रोना धोना और बढ़ गया। मैंने उससे पूछा इतना ज्यादा क्यों रो रही? कहने लगी कैसे उस बेटे पर गिरिया ना करूं जिसने मुझे तुम जैसा बेटा अता किया। खुदा उसे सब्र दे। अब तुम्हें बता रहा हूं ए हसन, अगर तुम्हारा भाई मर गया है तो मैं तुम्हारा भाई हूं। जी मेरी माँ इस पर गिरिया कर रही है तो मैं भी इससे अच्छा बयान नहीं रखता। इसी जुमले को अमानत लेते हुए आपको हदिया करता हूं। फजल की बख्शिशें हैं, बचपन से जवानी तक मुझ पर और हुकूमत और खिलाफत पर तुम लोगों के लिए थी, जो बाकी रहेंगी। बनी अब्बास मेरे साथ उसके इस्तबदादी बर्ताव के खिलाफ थे, यहां तक कि कनीज की खरीदारी में मुझसे इख्तिलाफ हो गया और उसने पैसे भी नहीं थे। यह आपकी चाहत की वजह से रहा होगा। कभी मोहब्बत और खिलाफत को मखलूत कर देता था। यही उम्मीद है। बनी अब्बास ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने विलायत अहदी को अली इब्ने मूसा के लिए मुहैया किया। क्या वो सच में इस काम में शामिल था? नहीं, बल्कि ये मेरी ही तदबीर थी। क्या मैंने आप दोनों के सामने इस काम से परहेज करने की राय नहीं दी थी?
क्योंकि बनी अब्बास खिलाफत के हाथ से चले जाने के डर से दुनिया को इधर से उधर करके रख देंगे। ये तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है। कितनी छोटी सोच रखते हैं, हर काम में जल्दबाजी करते हैं। अंदेशे से यही लगता है। किस चीज के बारे में खलीफा मुस्लिमीन? कैसे उस चीज से डरते थे जबकि अली इब्ने मूसा 22 साल मुझसे बड़े थे। क्या तुम सोचते थे कि मैं उससे पहले मर जाऊंगा? मैं? नहीं, कभी भी नहीं। मैं जानता था कि वो आपसे पहले मर जाएंगे। कैसे जानते थे? क्या मेरी जान को अमान है? ऐ साल के बेटे, तुम्हारी जान को अमान है। मेरे मौला, दारुल खिलाफा कहाँ है? दारुस्सलाम, मेरे जद का शहर बगदाद। वहाँ कौन रहता है और वहाँ के खास कौन है? मेरे अहले खाना और खानदान वाले बनी अब्बास। खुरासान आपकी खिलाफत का मरकज नहीं था, बल्कि एक वक्ती जगह थी, जब तक कि आपके बगदाद पर खिलाफत का वक्त आ जाए। तुम सही कह रहे हो। और ये भी कि बनी अब्बास कभी ये न मानते कि फजल इब्न सहल, जो कि मोहम्मद अमीन हाशमी और कुरैशी था, उसके कत्ल में मुजरिम जानते हैं और वो बगदाद में वजीर रहता और अली बिन मूसा अल रजा आपका दाहिना बाजू होते। वो कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप बगदाद के अलावा किसी और जगह को खिलाफत का मरकज नहीं समझते। और बनी अब्बास आपके खास और आपके दरबार में दरबारी और आला रुतबों पे हैं। सियासत माँ बाप नहीं समझती, बिल्कुल नहीं। जी सही फरमा रहे हैं। और जो भी इसके चंगुल में फंस जाता है, उसे पता होना चाहिए कि कैसे उसकी गिरफ्त से बाहर निकल सके। कोई भी हुकूमत में शरीक नहीं हो सकता, यहाँ तक कि जंगल में एक ही राजा होता है। और हम ऐसे जंगल में हैं जहाँ वहशी जानवर लातादाद हैं। इस जंगल को एक ही राजा चाहिए, एक ऐसा जिससे हर कोई डरे। काश मेरे भाई को ये बात पता होती। सही कहा। जैसे तुम्हारा भाई मेरा वजीर था, क्या तुम भी मेरे वजीर बनोगे? तुम तदबीर पसंद हो और अमन पसंद भी हो, 2 रियासत वाला। मुझे बख्श दीजिए मेरे आका, मुझे वजीर बनने की लालच नहीं है। बगदाद वाले भी मुझसे खुश नहीं होंगे। ठीक है, तो तुमको मशरकी ममालिक का वाली बना देता हूं, इराक से लेकर हुकूमत की आखिरी सरहदों तक। मुझे पता है कि मैं किस पर भरोसा कर सकता हूं। आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर होगा। हमने आपसे बायत की है, आप जहां भी रखेंगे हम वही रहेंगे। आसंत ऐ इब्न सहल, तुम पर खुदा की अदा करदा नेमतें और बहुत बड़ा हदिया है। फजल बिन याहिया के किसी ने इसे हासिल नहीं किया। आपका बहुत शुक्रिया मेरे आका। खुदा की इताअत और आपकी फरमाबरदारी के लिए हाजिर हूँ। और कब तक? खुदा से दुआ है कि आखिरी सांस तक आपके साथ रहूं, आपके हुक्म की पैरवी करता रहूं। खुदा आपको तवील उम्र अता फरमाए, आप हमेशा खुश खुर्रम जिंदगी गुजारें। तुम्हारी विलायत में आने वाले शहरों की मालियात में भी खास नरमी करूंगा तुम पर।